Anyone wants to read? Just raise hand. Yes, Shreyansh. Okay. Yes, start. Good morning, ma'am. Good morning. Heredity and evolution. Heredity. Acquired traits are traits that an individual experiences during his lifetime. A involves changes in non-reproductive tissue cannot be passed on to progeny. Inherited traits. Distinct between distinguishing qualities or characteristics that one acquires from his or her ancestors involves change in DNA or reproductive tissue transmitted to progeny. Heredity, transmission of characteristics or traits from parents to offspring. Variation, difference among individuals of a species and also among offspring of same parents. Any doubt? किसी को कुछ भी पूछना है? Please raise hand. You know what is acquired, what is inherited. Acquired जो हमें मिल जाता है हमारी लाइफ के दौरान, एंड इनहेरिटेड जो हमें गिफ्ट में मिलता है हमारे पेरेंट्स से. एंड हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ द ट्रेट्स. वेरिएशन जो हर इंडिविजुअल में उसके ऑफस्प्रिंग में जो चेंजेस दिखता है, एंड द वेरिएशन इज ऑफ टू टाइप्स. वन इज हेरिटेबल एंड अनदर इज नॉन हेरिटेबल. बेसिस ऑफ हेरिडिटी. हाँ, यस श्रेयांश, कंटिन्यू करिए. The basis of heredity. Each trait is influenced by both maternal and paternal DNA. Mendel's work proposed heredity is controlled by factors. Factors are now called genes. Performed experiments on garden pea, Pisum sativum, used 7 contrasting pairs of characters or traits to study heredity. Dominant trait, able to express itself over another contrasting trait. Recessive trait, unable to express its effect in the presence of a dominant trait. Mendel represented dominant trait as uppercase, example T for tallness, and recessive trait as lowercase, example for small t for shortness. Homozygous, when factors or genes of a trait are similar, example capital T or small t. Heterozygous, when the factors or genes of a trait are different, example capital T and small t. Genotype, genetic constitution of an organism, example pure tall double capital T. Phenotype, observable traits or characteristics of an organism, example tallness, shortness, etc. Genotypic ratio, expected ratio of genotypes produced by a particular cross. Phenotypic ratio, expected ratio of phenotypes produced by a particular cross. Monohybrid cross involves only one pair of contrasting characters. Phenotypic ratio in monohybrid cross is 3:1. Dihybrid cross involves two pair of contrasting characters. Phenotypic ratio in dihybrid cross is 9:3:3:1. Okay, Shreyansh. So here what Mendel did, he had done his experiment on the garden pea plant. So the scientific name of garden pea plant is Pisum sativum. ठीक है? And he had what he did, he had taken 7 characters of the garden pea plant. So he did this experiment 7 times, जिससे उनको अलग अलग ट्रेट्स पता चला. अब उन्होंने गार्डन पी प्लांट ही क्यों चूज किया? क्योंकि गार्डन पी प्लांट का सबसे मेजर एक बात था कि वो उसमें उनको बहुत इजीली क्रॉसिंग मिल रहा था, और उसका जो लाइफ स्पैन है वो 3 to 6 मंथ का होता है, इसलिए उन्होंने गार्डन पी प्लांट चूज किया. उसके बाद नेक्स्ट इज डोमिनेंट एंड रेसेसिव. डोमिनेंट जो एक्सप्रेस करता है जनरेशन में, एंड रेसेसिव जो सप्रेस हो जाता है, जिसे हम कैपिटल टी से या कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, और रेसेसिव को स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं. नेक्स्ट इज होमोजाइगस एंड हेटेरोजाइगस. होमो मैंने जैसे तुमको पहले भी बताया था, होमो सैपियंस. तो हमारा जो साइंटिफिक नेम है, दे आर द एडिशन ऑफ जेनेरा एंड द स्पीशीज. तो वैसे ही जो होमो वर्ड है, होमो का मतलब होता है सेम. अब जब दो लेटर एक जैसे दिख रहे हैं, क्योंकि एलील्स हम पेयर में लेते हैं या ट्रेड्स जीन्स जो तुम बोल दो, तो जब तुमको दो लेटर एक जैसे दिखते हैं, कैपिटल कैपिटल या स्मॉल स्मॉल, वो हो जाते हैं होमोजाइगस. और जब एक कैपिटल और एक स्मॉल होता है, दैट इज द हेटेरोजाइगस.
On the basis of homozygous and heterozygous, we are getting the genotypic ratio और genotype. तो और वैसे ही phenotypic और phenotype. तो अगर हमें कैपिटल T मिल रहा है तो भी वो टॉल होगा, और कैपिटल T स्मॉल t मिल रहा है तो भी वो टॉल होगा. बट कैपिटल T हमें प्योर फॉर्म में मिलता है, कैपिटल T स्मॉल t हमें हाइब्रिड फॉर्म में मिलता है. कैपिटल T हमें जीनोटिपिक रेशियो बताता है, कैपिटल T स्मॉल t हमें फिनोटिपिक रेशियो बताता है. तो ये आपका एक तो ये कंडीशन हो गई जीनोटाइप और फिनोटाइप की. उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोनोहाइब्रिड क्रॉस. मोनोहाइब्रिड, अब मोनो मतलब सिंगल, डाई मतलब डबल, ट्राई मतलब ट्रिपल. तो ट्रिपल तक तो मेंडल पहुंच नहीं पाए, कोई भी नहीं पहुंचा, सब डाई हाइब्रिड क्रॉस तक ही पहुंच पाए. तो अब क्योंकि मोनोहाइब्रिड क्रॉस है तो सिर्फ सिंगल ट्रेट लेकर चल रहे हैं. अब जब दो पेरेंट है तो वो कितने देंगे, दो और बच्चे देंगे, तो हो गया आपके पास 4. तो 3:1 का रेशियो निकला हमारा. क्योंकि 3:1 इसलिए ये जीनोटिपिक रेशियो था मोनोहाइब्रिड में, जिसमें आपको कैपिटल T स्मॉल t, कैपिटल T स्मॉल t एंड द लास्ट है स्मॉल t. ठीक, ये आपका जो फिनोटिपिक रेशियो था, ये फिनोटिपिक रेशियो में हमें ये दिख रहा है फिजिकली कि 3 आपको टॉल मिल रहे हैं और एक शॉर्ट मिल रहा है. वैसे ही अगर इसका जीनोटाइप आप निकालेंगे देन इट विल बी 1:2:1, जिसमें आपको कंप्लीट एक मिलता है पूरा प्योर और टॉल, और एक मिलता है प्योर डॉर्फ, और 2 आपको हाइब्रिड मिलते हैं. सेम वैसे ही डाई हाइब्रिड क्रॉस में हुआ था जब उन्होंने येलो और रिंकल्ड के बीच में क्रॉसिंग की हुई थी. तब उनको 4 में से 16 आगे जनरेशन मिली, 9:3:3:1. ठीक, अब आता है स्टेजेस ऑफ मेंडल एक्सपेरिमेंट, कि मेंडल ने एक्सपेरिमेंट में क्या क्या सिलेक्शन ऑफ द पेरेंट्स हुआ, जैसे ट्रू ब्रीडिंग विद द कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स ऑफ पेयर्स ऑफ ट्रेट्स. उन्होंने टॉल लिया, डॉर्फ लिया. पहला तो उनका ये सिलेक्शन था. यस श्रेयांश. Yes, ma'am. Obtaining F1 plants, F1 generation is the first filial generation formed after crossing desirable parents. Example: crossing pure tall, capital T, and dwarf small t. Plants give heterozygous tall, capital T small t F1 plants. Self-pollination of F1 plants involves crossing F1 plants to obtain F2 plants. The hybrid cross. It is cross between two parents that have two pairs of contrasting characters. For example, the cross between round yellow seed and the wrinkled green seed. The phenotypic ratio obtained in the hybrid cross is 9:3:1. 9:3:1. On the basis of observation of the hybrid cross, the law of independent assortment was proposed. Principle of Mendel. Each characteristic in an organism is represented by two factors. Two factors are dominant and recessive. Two contrasting factors, when present in an individual, do not blend. When more than two factors are involved, they are independently heredited. Heredity occurs at cellular level. Inside the nucleus of a cell, hereditary material is present in the form of DNA. DNA associates with proteins to form chromosomes. Okay. So I think there is no any doubt in the upper paragraph of dihybrid cross, as I already discussed in the last page. Now let's move on to the principle of Mendel. Mendel के principles क्या थे? सबसे पहले तो उसका प्रिंसिपल ये था कि उसने डोमिनेंट और रेसेसिव कैरेक्टर लिया, और दोनों कैरेक्टर F1 जनरेशन में सिर्फ डोमिनेटिंग कैरेक्टर ही आ पा रहा था, दूसरा कैरेक्टर नहीं आ पा रहा था. ठीक है. सो व्हेन मोर देन 2 फैक्टर्स आर इन्वॉल्व्ड, दे आर इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड. अगर 2 फैक्टर्स वो ले रहा है, फिर वो F2 जनरेशन में अपने आप इनहेरिट होता है. ठीक है, तो आपको अलग अलग जनरेशन मिलता है. अब ऑब्वियसली जो हेरिडिटी होगा वो सेल के अंदर से ही उसका लेवल शुरू होता है. ये मेंडल ने हमको बताया. ये सारे मेंडल के प्रिंसिपल्स हैं कि मेंडल ने इस पूरे वर्ल्ड को क्या बताया अपने इस पूरे थ्योरी में. Inside the nucleus of a cell, hereditary material is present in the form of DNA. ये मेंडल ने बताया. DNA के साथ में जो क्रोमोसोम्स होते हैं, प्रोटीन्स, जो क्रोमोसोम्स हैं उनमें जो DNA प्रेजेंट होते हैं, DNA जो है वो प्रोटीन्स और अमीनो एसिड के साथ में होते हैं.
मेंडल ने हमको बताया कि हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जो कि एक तो तुमको मैंने पहले भी बता दिया है, 22 ऑटोसोमल और 1 सेक्स क्रोमोसोम्स। इसके बाद मेंडल ने ये अकॉर्डिंग टू द मेंडल मोनोहाइब्रिड क्रॉस निकला जब उनका, तब उन्होंने ये लॉ ऑफ डोमिनेंस फर्स्ट लॉ को बताता है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ये सॉरी मोनोहाइब्रिड क्रॉस को बताता है, लॉ ऑफ डोमिनेंस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। सो श्रेयांश, आई एम रीडिंग दिस पार्ट क्योंकि ये मैं समझाते जाऊंगी और बोलते जाऊंगी। यस मैम। ओके, इसके बाद आप कंटिन्यू करोगे। It is a cross between two parents that one pair of contrasting character, for example, a cross between tall and a dwarf plant. तो मोनोहाइब्रिड क्रॉस का मतलब यही था कि ये भी टॉल कहलाता है और ये भी टॉल कहलाता है, और ये तो हमको पता है कि ये कंप्लीट डॉर्फ है। तो फिनोटिपिक रेशियो उसका जो निकला था दैट इज 3:1, और जीनोटिपिक जो मैंने तुमको अभी समझाया, इसी के बेस पर उन्होंने सबसे पहला लॉ निकाला, लॉ ऑफ डोमिनेंस। It states that only one parental traits get expressed in the F1 generation. कि F1 generation में सिर्फ एक ही ट्रेट, और जो पेरेंटल जो डोमिनेटिंग ट्रेट है वही दिखता है, while both the traits get expressed in the F2 generation. तो ये तुमको पता ही है, जो हमारा फर्स्ट ट्रेट निकला था, फर्स्ट F1 जनरेशन निकला था मोनोहाइब्रिड में, वो चारों कैपिटल टी स्मॉल टी थे, तो मतलब चारों टॉल निकले थे। तो ये आपको ये पहला पॉइंट हो गया, लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसके बाद सेकंड पॉइंट था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। इट स्टेट्स दैट टू एलील्स सेग्रीगेट फ्रॉम ईच अदर व्हेन कैरेक्टर्स आर ट्रांसफर्ड फ्रॉम पेरेंट्स टू द ऑफस्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन। अब सेग्रीगेशन का मतलब होता है सेग्रीगेट करना, अलग अलग करना। तो अब अगर जब कुछ चीजें अलग हो रही हैं, इसका मतलब ये है कि पेरेंट्स से कुछ चीजें अब उनके बच्चों को जाएंगी, सेग्रीगेट होंगी, मतलब अलग हो रही हैं। तो तुमको क्या समझ में आया कि जो हमारा F1 जनरेशन था, उस F1 जनरेशन में जो हमारा F1 जनरेशन था, उस F1 जनरेशन में पेरेंट्स से हमको क्या मिला, चारों बच्चों को टॉल टॉल मिला, मतलब जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर था चारों में टॉल टॉल आया। तो ये हो गया सेग्रीगेशन, की पेरेंट्स से हमें कुछ कैरेक्टर मिल गया। तो ये मोनोहाइब्रिड, इसमें तुमको एक चीज ये अच्छी बात है इस नोट्स में, जो तुमको बुक में शायद नहीं अच्छे से समझाया होगा, कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस के अकॉर्डिंग आपके सामने दो लॉज होते हैं, लॉज ऑफ डोमिनेंस एंड लॉज ऑफ सेग्रीगेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। डायहाइब्रिड के केस में आपके पास आता है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस, जो मैं अभी आगे समझाने जा रही हूँ। डायहाइब्रिड क्रॉस मुझे समझाने की वैसे ज्यादा जरूरत नहीं, क्योंकि ये तुम लोग कर चुके हो। मैं सिर्फ एक रीडिंग करती हूँ कि इट इज अ क्रॉस बिटवीन टू पेरेंट्स दैट हैव टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स। जैसे तुमको पता है अपन ने येलो सीड, राउंड सीड ये लिया था, तो और इधर रिंकल्ड और ग्रीन सीड लिया था। तो हमको उसमें जो फिनोटिपिक रेशियो मिला था दैट इज 9:3:3:1। अब इस रेशियो के बेस पर या डायहाइब्रिड क्रॉस के बेस पर हमारे पास था लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। अब इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वर्ड से समझ में आ रहा है, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आजादी का दिन। तो इट स्टेट्स दैट द मेंबर ऑफ द डिफरेंट पेयर ऑफ एलील्स असॉर्ट इंडिपेंडेंटली इनटू द गैमेट्स। अब इधर आपको इस रेशियो में सारे के सारे कैरेक्टर्स दिखेंगे। जब आप डायहाइब्रिड क्रॉस करते हो आपको फिर वो भले एक प्योर मिलेगा, राउंड येलो सीड मिलेगा, रिंकल्ड ग्रीन सीड मिलेगा, रिंकल्ड येलो सीड मिलेगा, राउंड ग्रीन सीड मिलेगा। मतलब आपको कॉम्बिनेशन सारे कैरेक्टर्स के इंडिपेंडेंटली इस लॉ में नजर आएंगे जब आप डायहाइब्रिड क्रॉस करते हो बिटवीन टू पेयर ऑफ एलील्स या टू पेयर ऑफ फैक्टर्स, टू पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स, कुछ भी बोल दो, दो तीन इसके वर्ड्स हैं। तो ये आपका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है। मैं फिर से बता देती हूँ, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट वो बोलता है कि ये डायहाइब्रिड क्रॉस में होता है, और ये बताता है कि सारे कैरेक्टर्स जो आपने डबल या पेयर ऑफ कैरेक्टर्स जो आप लेते हो, वो सारे कैरेक्टर्स आपको इस जनरेशन में मिलेंगे। ठीक, अब हम आते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस में। अब इनकम्प्लीट डोमिनेंस
इनकम्प्लीट, कॉपी इनकम्प्लीट, वर्क इनकम्प्लीट, अपने आप समझ में आ रहा है. It is the phenomenon where one allele is incompletely dominant over the other member of the allelic pair. Incomplete का मतलब होता है हाइब्रिड. ठीक है, आप जब इस डेफिनेशन को लिखोगे तो इसमें अपने दिमाग में याद रखने के लिए शब्द को याद रखो कि इनकम्प्लीट मीन्स हाइब्रिड. हाइब्रिड मतलब जब हमने सिंगल ट्रेट वाला किया था, कैपिटल टी, स्मॉल टी, उसमें आपको जो ये वाला रेशियो मिला था, ठीक, जीनोटिपिक 1:2:1, तो इसका मतलब ये है कि जो ये 1 है ये तो कंप्लीट है भाई, कैपिटल टी. ये जो पीछे का 1 है ये भी कंप्लीट है, स्मॉल टी. बट ये जो बीच वाला 2 है, ये जो 2 का रेशियो आया, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी एंड कैपिटल टी स्मॉल टी. दैट इज द इनकम्प्लीट डोमिनेटिंग, क्योंकि इसमें कैपिटल टी पूरा नहीं आ पाया. तो हम क्योंकि कैपिटल टी को डोमिनेटिंग जानते हैं तो वो ऊपर से पूरा नहीं आ पाया, इसीलिए ये कहलाया इनकम्प्लीट डोमिनेंस. मैम ही है ना. मैम बोली थी मैं मैसेज करूंगी तुमको कि मैं क्लास में आना चाहती हूँ. इसमें नहीं दिखेंगी ना, तो फिर मैं मैसेज कैसे करूं उनको कि आप ही हो? उन्होंने तो मैसेज भी नहीं किया. ओके हर्षित, सो जो इनकम्प्लीट डोमिनेंस, इट मीन्स दैट कि जो डोमिनेटिंग कैरेक्टर है दैट इज द कैपिटल टी एंड कैपिटल टी. ठीक है, सो Ma'am, this incomplete dominance is a part of law. No, it is not a part of law. Till law of independent is a part of second dihybrid cross. It is a case when we are doing the crossing. ये दो केसेस हुए हैं जो उन्होंने एक्सप्लेन हमको समझाया है कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस का मतलब क्या होता है, कि कैरेक्टर एक्सप्रेस नहीं हो पाते. हर्षित, हाँ, ये मैंने अभी तुमको समझाया कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस मतलब जो डोमिनेंट का मतलब क्या हुआ, हमने क्या पढ़ा, कैपिटल टी है ना, हम यही जानते हैं. तो ये कैरेक्टर इस जनरेशन में जब हमने सिंगल मोनोहाइब्रिड क्रॉस किया था तो हमें F2 जनरेशन में जो रेशियो मिला था दैट इज 1:2:1, जब हम टॉल और डॉर्फ का कर रहे थे. ओके हर्षित, ठीक है. तो अब तुमको याद होगा कि तुमने जो 1:1 हमको मिला था दैट इज कंप्लीट टॉल एंड कंप्लीट डॉर्फ, और ये जो बीच वाला 2 था दैट इज द मिक्सअप ऑफ द टॉल एंड डॉर्फ, मतलब हाइब्रिड था, कैपिटल टी स्मॉल हाइब्रिड है ना. तो ये जो इनकम्प्लीट है मतलब ना डोमिनेटिंग कैरेक्टर पूरा इनमें एक्सप्रेस नहीं हो पाया है, उसको हम बोलते हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस. ठीक है, अब मैं तुमको एक बार ये पॉइंट फिर से बताती हूँ. द फेनोमेना वेयर वन एलील इज इनकम्प्लीट, एक एलील इनकम्प्लीटली डोमिनेंट है क्योंकि कैपिटल टी है और दूसरा स्मॉल टी है ओवर द अदर मेंबर ऑफ द एलिलिक पेयर, दैट इज द इनकम्प्लीट डोमिनेंस. अब क्योंकि डोमिनेटिंग तो आपको शो करना ही पड़ेगा, टॉल है चारों, बट चारों टॉल है लेकिन मिक्स ब्रीड में वो टॉल है 2. ठीक है, और एक तो सॉरी डॉर्फ है और एक टॉल है, ऐसा है. ठीक, अंडरस्टूड हर्षित? यस मैम. अब इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज द कोडोमिनेंस. कोडोमिनेंस, इट इज द फेनोमेना वेयर बोथ द एलील्स ऑफ अ जीन आर इक्वली डोमिनेंट. और इसमें सबसे ज्यादा एग्जाम्पल अच्छा जो होता है, जो क्लियरली समझ में आता है, दैट इज द ब्लड ग्रुप. ब्लड ग्रुप कैसे कि इसमें बोलते हैं कोडोमिनेंस. ठीक, हम लोग जैसे स्कूल में जानते हैं, स्कूल का नाम सुनते हैं को एजुकेशन. को एजुकेशन का मतलब जहां पर गर्ल्स और बॉयज को इक्वली इंपॉर्टेंस मिलता है, दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, दैट इज द को एड एजुकेशन. ठीक है, या को एजुकेशन. अब इसमें आता है कोडोमिनेंस. कोडोमिनेंस का मतलब ये होता है कि दोनों एक दूसरे के ऊपर डोमिनेटिंग है. ठीक,
देखो, the phenomena where both the alleles, दोनों एलील of the genes are equally dominant and get expressed together in heterozygous condition. दोनों heterozygous condition में, heterozygous मतलब कैपिटल विथ स्मॉल लेटर कंडीशन में आ सकते हैं. इसमें एक ही एग्जांपल सूटेबल है, दैट इज द ब्लड ग्रुप. अब ये कैसे, मैं तुमको समझा देती हूँ कि अगर मान लो मम्मी को ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है और पापा को ब्लड ग्रुप बी पॉजिटिव है, तो कंडीशंस आएंगी, जो बच्चा होगा उसको ए पॉजिटिव भी हो सकता है, बी पॉजिटिव भी हो सकता है, ए बी पॉजिटिव भी हो सकता है. ठीक है. बट अगर मम्मी को ए पॉजिटिव है और पापा को ओ पॉजिटिव है, तो बच्चे में ए पॉजिटिव आ सकता है, क्योंकि ओ पॉजिटिव इज रेसेसिव एलील एंड बी पॉजिटिव इज डोमिनेटिंग एलील. बट इसका भी एक कंडीशन ये होता है कि कभी कभी जो ओ पॉजिटिव एलील है, जो रेसेसिव होता है, ब्लड ग्रुप तुमको पता ही होगा कि ए बी एंड ओ 4 कंडीशन में ब्लड ग्रुप मिलते हैं. तो ए बी तो हमको पता चल जाता है कि ए से आया होगा या बी से आया होगा या ए बी से आया होगा. बट ओ जो होता है वो रेसेसिव होता है. तो रेसेसिव ब्लड ग्रुप जो होता है वो कभी कभी किसी जनरेशन में एक्सप्रेस होकर डोमिनेटिंग हो जाता है. तो ये कंडीशन इसीलिए इस कोडोमिनेंस में बताई गई है कि O इज अ रेसेसिव कैरेक्टर, बट इन सम ऑफ द जनरेशन इट गोज टू अ डोमिनेटिंग कैरेक्टर, और वो बच्चे में O पॉजिटिव हो जाता है. ओके. तो अब इसके बाद yes Shreyansh, please start reading. Sex determination in humans. Autosomes. First, 22 pairs of chromosomes that do not determine the sex of an individual. Ma'am, slide down. Wait. Sex chromosomes. Last pair of chromosomes represented as X and Y. Females have 2 X chromosomes, so can be represented as 44 plus XX. Male have 1 X and 1 Y chromosome, so can be represented as 44 plus XY. Yes, I hope it is not, you don't need any explanation. This is the picture of sex chromosomes and a autosomal chromosome. Yes, Shreyansh. Each gamete receives half of the chromosome, that is 22 plus X or 22 plus Y. Male gamete have 22 autosomes and either X or Y sex chromosomes. Male gametes can be of 2 types, 22 plus X or 22 plus Y. Female gametes can be of only one type, 22 plus X. Sex of a baby is determined by the type of male gamete X or Y that fuses with the female gamete. Speciation, formation of new species. Causes of evolution. Ma'am, this is there in the chapter. Yes, it is a little bit of evolution, not complete. ये पूरा नहीं है जिसमें आपको कनेक्टिंग लिंक है, आर्क्योपेरिक्स वाला, वो वाला टॉपिक इसमें नहीं आएगा. थोड़ा सा बस दिया हुआ है क्योंकि जेनेटिक ड्रिफ्ट है, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन है. ये अगर हम स्पेशिएशन नहीं पढ़ेंगे तो हमें ये समझ में नहीं आएगा, इसलिए छोटा सा टॉपिक है, ज्यादा नहीं है, टेंशन मत लो. Yes, ma'am. Natural selection, a process that results in an increased survival and reproductive success of individuals that are well adjusted to the environment. Genetic drift, accidental change in the frequency of genes in a small population. Geographical isolation, two subpopulations of the same species cannot interbreed because of the appearance of geographical barriers such as river, mountain, etc. Relation between evolution and classification. Evolution and classification is studies on the basis of characteristics. Characteristics are detail of appearance or behavior. Okay, so here it is the speciation, formation of new species. कोई नया species बन रहा है, तो अब मैं तुमको इसमें समझा सकती हूँ ये एग्जाम्पल देकर कि तुम्हारे घर में सबके घर पे लिजार्ड होता है, वॉल लिजार्ड होता है, और तुमने एक वो उस एनिमल का नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, वो जो जमीन में चलता है, ड्रैगन, कुछ कोमोडो किमोडो ड्रैगन बोलते हैं शायद, है ना, जिसका पूरा जो फीचर्स होता है वो लिजार्ड जैसे ही होता है.
है ना, वो पूरा फीचर लेकर चलता है लिजार्ड जैसे। तो 1000 ऑफ इयर्स पहले जो लिजार्ड था, वॉल लिजार्ड था, वो ऐसा लिजार्ड भी बन गया। तो अब आता है नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस, इसी पर बेस्ड नेचुरल सिलेक्शन प्रोसेस में बताती हूँ। अ प्रोसेस दैट रिजल्ट इन एन इंक्रीज सर्वाइवल एंड रिप्रोडक्टिव सक्सेस। अब जो ये वॉल लिजार्ड है, ये कभी जंगलों में गई होगी, इसके अंदर धीरे धीरे जो चेंजेस हुआ एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग, तो इसका पूरा बॉडी चेंज। अब जो वॉल लिजार्ड है वो तुमको पता है कि जो इंसेक्ट्स होते हैं, जो स्पाइडर्स होते हैं, वो सब खाते हैं। लेकिन ये जो जंगलों में जो किमोडो ड्रैगन नाम से जो है एनिमल, ये तो उसके दम पे नहीं टिकेगी, तो इसको चाहिए आपको दूसरा ऑर्गेनिज्म खाने के लिए। तो एक जो घर की लिजार्ड है, वो जब जंगल में चली गई तो कुछ सालों के बाद उसके अंदर क्या आ गया, ये चेंज आ गया। तो ड्यू टू द एनवायरनमेंट उसने अपनी बॉडी को अपना बॉडी को एडजस्ट किया और रिप्रोड्यूस होती गई, हर बार रिप्रोड्यूस होती गई, हर बार रिप्रोड्यूस होती गई। सेम ऐसे ही जिराफ के साथ में हुआ था एक समय में, कि जिराफ की गर्दन इतनी लंबी नहीं थी, लेकिन जब जिराफ जहां रुक रहे थे वहां पर सारी जो ट्रीज थी वो इतनी ऊंची थी कि उनको नहीं मिल पा रहा था खाने के लिए। और जिराफ जो है दे आर द हर्बीवोर्स, तो उनको जब कुछ खाने को नहीं मिला तो एक जनरेशन, दूसरा जनरेशन, ऐसे सालों लग गए, तो उनकी जो गर्दन है वो लंबी हो गई बिकॉज ऑफ दिस स्पीशिएशन प्रोसेस, है ना। क्योंकि जब उसको जीना है तो उस एरिया के अकॉर्डिंग अपने बॉडी को डालना पड़ेगा। इसके बाद है तुम्हारा जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट इज द एक्सीडेंटल चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ जीन्स इन अ स्मॉल पॉपुलेशन। अब अगर मान लो कि कोई साउथ अफ्रीका का आता है अगर बंदा, और वो आके इंडियन गर्ल से शादी कर लेता है, उसके बाद जो पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी तो आने वाले 2-3 जनरेशन तक तो सारे जो अफ्रीका के कैरेक्टर्स है वो उस बच्चे में दिखेंगे जो इंडियन गर्ल से प्रोड्यूस होगा। ठीक है, कुछ कुछ जैसे कि हो सकता है ब्रॉड नोज, ब्रॉड लिप्स, कर्ली हेयर्स, तो और फिर डार्क कॉम्प्लेक्शन, ये मिलेगा। जब 2-3 जनरेशन बीत जाएंगी उसके बाद शायद ये चेंजेस कम हो, तो ये होता है जेनेटिक ड्रिफ्ट। तीसरा तुमको बताते हैं ज्योग्राफिकल आइसोलेशन। अब ज्योग्राफिकल है तो मतलब कुछ रिवर, माउंटेन, लैंड, इन सब से रिलेटेड है। अब हम अपने इंडिया का एग्जांपल है तो मेघालय हो गया, अपना सिक्किम हो गया, इधर ईस्टर्न साइड के सारे जो एरिया है वो, वहां के अगर तुम देखोगे तो हम सबको नेपाली बोलते हैं। क्या वो नेपाल के हैं? वो नहीं है नेपाल के, बट हम सबको नेपाली बोलते हैं। इवन आसाम भी हमारे इंडिया में, हम उसको भी नेपाली बोल देते हैं। तो या फिर ज्यादा होगा तो चीनिया है, चाइना वाला है, ऐसा नहीं है। तो ये जो ज्योग्राफिकल आइसोलेशन से जो वहां पर जो पॉपुलेशन प्रोड्यूस हुई वो वहां के अकॉर्डिंग बनी, इसलिए आपको उधर के सारे लोग गोरे दिखेंगे, वहां के सारे व्हाइट कॉम्प्लेक्शन वाले होते हैं, क्योंकि वो ठंडा एरिया है। ठीक है, इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशनशिप बिटवीन इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन। यस श्रेयांश, हमारा बस थोड़ा सा ही टॉपिक है, प्लीज जल्दी फास्ट आज कंप्लीट करो इसको। श्रेयांश। Yes, ma'am. हाँ, Homologous organs. The homologous organs are similar in the form but perform different functions in different organisms. Analogous organs, the organs that perform similar function in different organisms of different origins, are analogous. What are fossils? Ma'am, these also. where Ma'am, last, what are fossils? fossils? Fossils, I think it is not in the topic. Yes, ma'am. ठीक है, छोड़ दो। वेस्टिजियल ऑर्गन, Ma'am, I have to read vestigial organ. हाँ, Vestigial organ. Such organs which are present in a reduced form and do not play any role in the normal body functions are known as vestigial organs. For example, the nictitating membrane of the eye or vermiform appendix. Ma'am, explain this, ma'am. I did not understand. एक मिनट। यस,
Vestigial organ is the organ which are present in the body, in our body, but it is of no use. जैसे कि हमारे कान का पिन्ना, अपेंडिक्स, ठीक है. निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन मतलब वो मेम्ब्रेन होती है जो हमारे आंखों के सामने, हमारे आंखों के सामने नहीं, सॉरी, जो एनिमल्स के सामने या एम्फीबियंस के आंखों में ना एक निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन होती है, वो उसकी कोई जरूरत नहीं होती है, लेकिन उसके बावजूद भी वो आंखों में होती है. क्योंकि क्या होता है, जब कभी आप एग्जांपल देख सकते हो, आपके घर में अगर डॉग्स होंगे, अगर कभी डॉग पाला होगा या कहीं देखा होगा सोते, तो जब डॉग सोता है तो सबसे पहले उसकी आंखें बंद नहीं होती है, सबसे पहले वो मेम्ब्रेन उसकी आंखों को कवर करती है और उसके बाद उसकी आंखें बंद होती है. तो आंखें बंद करने के बाद या बंद करने समय उस मेम्ब्रेन की जरूरत नहीं होती है, उसको हम निक्टिटेटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक है. और अपेंडिक्स हमारी बॉडी में प्रेजेंट होता है, पूरी बॉडी में अपेंडिक्स का कोई रोल नहीं है, लेकिन वो तो भी प्रेजेंट है, उसका कोई फंक्शन नहीं है ना. आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में कोई फंक्शन है ना एक्सक्रीटरी सिस्टम में उसका कोई फंक्शन है. अपने ईयर लोब्स, कान का जो पिन्ना होता है, इस पिन्ने का कोई रोल नहीं है, सिर्फ ये हमारे फेस को सुंदर बनाने के लिए यूज होता है. ये यस हर्षित, मैंने इसीलिए बोला था कि फॉसिल हम पढ़ लेते हैं, क्योंकि फॉसिल आ सकता है, कुछ टॉपिक बस इवोल्यूशन का एडिक्टेड है. एक काम करो श्रेयांश, तुम ना फॉसिल्स थोड़ा सा ही इसको रीड करके कंप्लीट कर दो. अपीयरेंस एंड इंपॉर्टेंस. अपीयरेंस ऑफ फॉसिल मैम की इम्पोर्टेंस ऑफ फॉसिल. अपीयरेंस से इंपॉर्टेंस तक कंप्लीट कर दो. Yes, ma'am. Fossils have the same shape as that of the original animal, but their color and texture may vary widely. The color of a fossil, depends upon the type of minerals that form it. The science dealing with the study of fossils is called paleontology. Formation of fossils. अगर Organism. एक मिनट, अगर मुझे किसी फॉसिल की एज जाननी हो तो मुझे क्या करना पड़ेगा? यस नंदिका प्लीज से. कार्बन डेटिंग. कार्बन डेटिंग. मुझे अगर किसी फॉसिल की एज जाननी है, लोगों को कैसे पता चल गया कि डायनासोर कितने साल पहले था? 5 साल पहले भी तो रहा होगा डायनासोर, कैसे पता चल गया? तो ये जो कार्बन डेटिंग प्रोसेस है, इससे पता चल गया उनको कि ये जो फॉसिल है कितना पुराना है. जो हमारी बॉडी में कार्बन प्रोड्यूस होता है वो सॉइल में मिक्स हो जाता है. ये बहुत लॉन्ग प्रोसेस है जो कि हमें जब हम जियोलॉजी का कोर्स करते हैं तभी हमको पता चलता है. यस श्रेयांश जल्दी. Formation of fossils. Organisms decay after their death, but the hard parts of the organism are preserved. When organisms die, they get buried under the sediments of sand. Sediment deposition occurs and their hard parts absorb minerals. Many years later, minerals replace their hard parts and convert them into fossils. The sediments which cover the fossil get converted into sedimentary rocks. Importance of fossils. They inform us about the types of living things that existed in the past. They inform us about the extent to which living things have changed over time. They inform us about the time when a particular life form existed. Okay, thank you श्रेयांश. VP मैम. VP मैम. Yes. मैम Yes. आप अभी क्लास में पूरा थे ना? Yes. आपके नाम से 2 लोग एंटर कर रहे हैं, एक को मैं अभी एडमिट कर देखिएगा. हाँ, I am here from the beginning. हाँ मैम, आपके नाम से 2 लोग क्लास में एंटर किए हैं, एक तो चला गया, एक और है. Who is that? Even Nandini. Yes, I can see. हाँ, I am having the photo click of that. एक अभी. हाँ, आप उसको निकाल दो मैडम बिल्कुल. हाँ मैम, एक आ चुका है, लेकिन ना ये ऑडिबल नहीं है. ये देखिए आप क्लास में चेक करिए लास्ट में ऋषभ के ऊपर. Yes, I saw. I saw. Just उसको अलाउ मत करिए मैडम. मैम मैंने इसलिए आप हो ना क्लास में, क्योंकि 2 लोग घुसे थे अभी क्लास में आपके नाम से. हाँ, it's me on the top. मेरे नाम के साथ हमेशा मी रहेगा. नहीं मैम, नहीं है. है एकदम टॉप में देखिए मी है. मिनी 1251 मी. It will be there. नहीं मैम, आप नहीं हो उसमें, ऐसा नहीं लिखा है, सिर्फ मिनी 1251 ही लिखा है. अच्छा ठीक है. Okay, so I am there. You others you just turn out.
So ma'am, if ever I come to the class, I will in the chat box I'll just give you a message that it is vice principal ma'am. Okay. Okay, ma'am. Okay, ma'am. Thank you, ma'am.